How many of you are excited about today? Yes, good afternoon, Suman. Good afternoon. And I'll just start the chat. So, how many of you are seeing me for the first time? Mitu says she's very excited. And you are here to become financially independent. How many are here to do business, to become financially independent, to know more about what's going on in the business front and work from home? How many of you are ready to do that? और आप में से कितने जने हैं? Oh, sir, Samiraj, I'm very novice here. Meetu Singh writes, आप में से कितने जने हैं जो काम कर रहे हैं? Already gift packaging में है. How many of you are already working? Kajal is working. Who else is working? How many of you are working? Let's know. So that I know what you need to know. Sneha says, I'm working. Wonderful. Who else is working? Or Monica. So we have few people working और मुझे लगता है नॉन वर्किंग ज्यादा है. Is it so? अबे फोन देखो जरा से. I think नॉन वर्किंग ज्यादा है. Is it? So we have new people. How many of your homemakers not working at all? How many of your homemakers are not working at all? Pavinder, I can see. Suman Agarwal, Nisha, Bhavna, Swati Singla, Meetu is a homemaker. Wonderful, wonderful. Simmi is a homemaker. Wonderful. तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अच्छा है. मीन्स हमें पहले से ये पता हो कि बिजनेस के सक्सेस के लिए हमें क्या जानना चाहिए और उसको जान के हम बिजनेस करें. वो बेटर है कि हम शुरू हो जाएं बस बिना जाने. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? नंबर 1, बिजनेस को जान के करें. नंबर 2, बिजनेस को बिना जाने. सो 1 और 2, टेल मी 1 और 2. जान के करें कि बिना जाने करें? जान के करें. भावना, शिखा, निशा, ऑब्वियसली वन. स्नेहा सेज यस. स्नेहा, पर हम ऐसा करते नहीं है. हमें लगता है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है और हम उसमें कुछ कुछ खरीद के लाते हैं. हम गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं. कुछ कुछ बनाते हैं और शुरू हो जाते हैं. हाँ जी, इज इट राइट? डू वी डू दैट? Do we do that? That we pick up something, we start something, we make something, and we think it's started, right? Right. So business doing is a art and a science. But before I continue, मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि ये आज का जो वेबिनार है, this is for whom? So that जो precious time है आपकी life का, your life's precious time is not wasted. Number 1, we are going to talk about the business of gift packaging here. And we are going to talk about कि बिजनेस करने से पहले अगर हम ये जान लें कि इस बिजनेस के अंदर मुझे क्या चीजों का पहले से ही पता होना चाहिए ताकि the beginning of the business is really rocking and it's going strong. How many of you are losing not money, you are doing better? How many of you agree to this? Right now, I want to know from all of you. This webinar is for students who doesn't want to study, has interest in art and craft, and they want to work into gift packaging. If there are any students, they are for that. So मैं आपको बता रही हूँ और आप लोग click करेंगे कि I am this. Then this is for women who are into bakery, who are into candle making, who are into resin, and they want to have a second business. So they are also here looking at gift packaging as a second business. If there are anybody of you here, you can write down what work you are doing. Number 3, you are here, you are a homemaker and you are looking to start some business कि मुझे कोई काम करना है और आपको ये लगता है कि गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस घर से शुरू करने में एक कंफर्टेबल बिजनेस है. ऐसे लोग हैं. There people are like that. Okay, I'm a homemaker and I want to start. Number 4, I'm a single mother. तो मुझे मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना है और मेरे को काम भी करना चाहती हूँ, मुझे पैसे भी कमाने हैं. So I'm a single mother. It is for them. It is for women जो काफी गैप हो गया. दे बिन होम मेकर, अब बच्चे 10th में चले गए, अब बच्चे 12th में चले गए, और द गर्ल्स हैव गॉट मैरिड. आई एम 40, 45 नाउ.
kids have grown up, I want to work, right? That is what is inspiring, and then I want to work in that category. In that category we are. We are already a gift packer designer. कि हम already एक gift packer designer हैं, and I don't know how to grow my business. मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि how do I design it well, कैसे मैं उसको और अच्छा करूं, clients को लेके आऊं. Then also this is for them. So these are the categories. These are the categories. अगर आप इन categories के बाहर हैं तो शायद ये वेबिनार आपके लिए नहीं है. आप मेंशन कर सकती हैं मेरे को दैट आई हैव दिस कैटेगरी. आई विल सी वेदर इट विल सूट यू और नॉट, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ ये 1 घंटा जो आप मेरे साथ स्पेंड करेंगे वो 1 घंटा आपका पूरा फ्रूटफुल हो, आप इससे एक अच्छा रिजल्ट लेके जाएं. आर यू विद मी? आर यू विद मी कि ठीक कह रही हूँ मैं? आर यू विद मी? व्हाई वेस्ट टाइम इफ इट इज नॉट मेंट फॉर मी? तो चलिए, somebody is saying I want to earn for family or something. Tell me, what are your dreams? Write on the chat. आपका ड्रीम क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नेम एंड फेम, अपनी जिंदगी का मालिक होना, बिकमिंग द ओनर ऑफ योर ओन लाइफ, व्हाट इट इज? टेल मी कि आपकी जिंदगी का एम क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आनंद एंड आनंद सेज. हु एल्स? So only one person coming up that this is my dream. So financial, Mahima, learn and earn. Nisha says financial independence. How much? Entrepreneurship. Josephine says, okay, what else? I want, okay. I did not know how to expand. Okay, I'm into decoration and homemaker, need to start up. I'm a homemaker. Okay. Now, my another question to you is, for this, I need some of you to answer also. तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपका ये सपना पूरा हो जाता है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो जिंदगी कैसी होगी? देखिए, बहुत थोड़े से लोग यहाँ पर विंडो पे हैं. शिखा, पविंदर, गुनीत, अंजलि, रेखा, सुमन, जयवीर, स्नेहा, राइट? You people are here on a window, and I clap to you first because game मैदान में खेला जाता है. स्पेक्टेटर तो सिर्फ देखते हैं, प्लेयर तो जो मैदान में है वही है. So you are a player. You're player. Yes, I'm getting it. So I want to ask here, Sneha. Sneha, can you answer my question? I'm spotlighting you here with me. I'll get. Tell me. Unmute yourself. Unmute yourself. You are beautiful. So you are absolutely beautiful. Tell me कि आज जिस भी ड्रीम के साथ आप यहाँ आई हैं, अगर वो आपका ड्रीम पूरा होता है तो जिंदगी कैसी दिखती है? मैम, जो सपने देखे हैं और वो पूरे होते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है. लाइफ इसीलिए तो है कि भाई सपने देख रहे हैं, उन्हें पूरा करते जाओ तो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल होगी वो तो. एंड मेरा एक ड्रीम ये भी है, गिफ्टिंग. मैंने अभी लास्ट मंथ ही अपना स्टार्ट किया है, डेकोर एंड गिफ्टिंग में हूँ मैं. तो मुझे खुद तो इस चीज में करना ही है. प्लस ये चीज एक ऐसी भी है कि इसमें जरूरी नहीं है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो उतने ज्यादा एजुकेटेड हो, या ये आजकल बहुत सारे जैसे लेडीज हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं वो नहीं पढ़ पाए या किसी भी रीजन से है, तो उनको ये चीज फील नहीं होनी चाहिए कि अगर हमने पढ़ाई नहीं करी है तो हम कुछ नहीं कर सकते. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई लेडीज है, कई वुमेन है कि काम एक टाइम के बाद छूट गया और मतलब उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है. लेकिन ये चीज ऐसी है कि मैं अगर करूंगी और मैं अगर लोगों को सिखा पा रही हूँ, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए. जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो आपको कई और लोगों को भी अपने साथ लेके आप बढ़ते हैं. तो मेरा जो एम है, for Sneha for such a noble thought, such a beautiful thought. तो स्नेहा, जब आपके पास में कम से कम 100 लोग काम कर रहे होंगे, चीजें बना रहे होंगे, आप पूरे इंडिया में सप्लाई कर रही होंगी, पूरे एक्सपोर्ट के लिए सोच रही होंगी, और जो आपका ये सपना है कि वो उनके पास एजुकेशन है, यानी तो मैं खुद 3000 कारीगरों से ज्यादा का काम करती हूँ, उन लोगों के साथ ज्यादा काम करती हूँ. पूरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को मैंने
कंटेम्परराइज किया और उन लोगों ने अपने घर बना लिए। मुझे आपकी बात सुन रही हूँ तो यंग शालिनी याद आ रही है कि जब मैंने काम शुरू किया था तो बिल्कुल यही सोच थी। स्नेहा, जब ये सपना पूरा हो जाएगा तो आप ये मुझे बताओ 2 लाइनों में, ये जिंदगी कैसे दिखेगी आपको? हाउ विल दिस लाइफ, मतलब कैसी दिखेगी जिंदगी, योर लाइफ टू यू? फॉर मी इट विल बी लाइक कि आई एम सेटिस्फाइड। अभी चीजों वाह, को लेके सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैं कर रही हूँ, लेकिन ये ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा तो मैं सेटिस्फाइड फील करूंगी कि भाई मैं अगर पैदा हुई हूँ, मैंने जन्म लिया है, तो उसको मैंने जस्टिस किया है कि भगवान ने अगर मुझे इस धरती पे पैदा किया तो उस चीज को मैंने जस्टिस किया है। सिर्फ अपने लिए नहीं, और भी लोगों के लिए जो होना चाहिए। तो मेरा तो ये है, सिंपल फंडा है मुझे। हाँ, मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि मैं अभी इतना कर रही हूँ कि मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ, कि ठीक है चीजें चल रही हैं, लेकिन अब मैं जो काम कर रही हूँ वो दूसरे लोगों के लिए है कि हाँ भाई ये चीज तो है कि मुझे दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, इसीलिए मैंने ये वंडरफुल। स्टार्ट किया है। तो थैंक यू स्नेहा, घंटों बात कर सकते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप एंड स्पीकिंग। वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट एंड हम बिल्कुल लुक फॉरवर्ड करेंगे कि आपके साथ हमारा एसोसिएशन, मैप का एसोसिएशन लंबे समय तक रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद थैंक यू अस, थैंक यू सो मच। व्हाट अ वंडरफुल थॉट। हु एल्स विल लाइक टू शेयर देयर ड्रीम अगर वो सक्सेसफुल हो जाए? रेखा महेश्वरी, व्हाट अबाउट यू? What about somebody has to be on the video to share? So Rekha, will you like to share? Nilofer, you have to come on the video to share. So I will ask Rekha, who were a nice, smiling, beautiful girl here. Yes, Rekha, and unmute करो अपने आप को. ओके। So रेखा, आज आप आए हो यहाँ पे और एक सपना लेके, एक फ्यूचर देख के, अगर वो फ्यूचर क्या है और अगर वो पूरा हो जाए तो जिंदगी कैसी हो? देखिए, एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से ऐसा ही रहा कि मैं पूरी फैमिली में इन्वॉल्व थी। बट अब ऐसा है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और मेरे पास में टाइम है, तो मैं उसको यूज करना चाहती हूँ। और अपनी कुछ ऐसी पहचान जो मेरा शायद शादी के टाइम पे जो चीजें रुक गई थी, अब मैं उसको वापस कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे लगता है कि मेरे पास में ऑफर बहुत आए हस्बैंड का बिजनेस ज्वाइन करने का। बट मुझे लगा कि नहीं, यदि मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं अपने लेवल पे कुछ करूँ। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसा कुछ होता है तो मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो हो नहीं जाएगी, अभी हो गई। हो गई, हो थैंक गई। यू। सो आप स्टार बन गए, आप स्टार बन गए, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आपके हस्बैंड के पास पैसा है, ऑल राइट है, बट आपके पास है कि आप अपने हस्बैंड को कर रहे हो, चल आई टेक यू टू स्विट्जरलैंड। यू नो व्हाट फन। आई तो मेरी स्टूडेंट है जो नियति का, आप टेस्टिमोनियल भी सुन रहे थे, रिसेंटली उन्होंने अपने हस्बैंड की बर्थडे पे उसको 50,000 का गिफ्ट दिया, जो 1 साल पहले डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड से खर्चे पर। एकदम एकदम। तो रेखा, कंसिडरिंग ये हो गया, थैंक यू। can we all applaud for Rekha that बच्चे बड़े हो गए हैं and now she is ready to move on. एक जने को और ले सकते हैं, somebody has to be on the video. ये हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, we are manifesting it. आज हम यूनिवर्स को बता रहे हैं, we are telling the universe that okay, this is me. Suman, will you like to speak about? So let's have Suman, because उनका मन कर रहा है, हाथ नहीं उठा रही थी वो. So let's have Suman here. तो हम संकोच करते हैं सुमन. हाँ, तो सुमन हेलो आज मैम। बताओ, आप कहाँ से हो, क्या क्या करना चाह रही हो, कैसे कैसे सपने पूरे होंगे? हाँ जी। मैम भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, हाँ जी। उड़ीसा। जी बिल्कुल। तो आज आपके जिस सपने से भी आई हैं आप यहाँ पे, वो पूरा हो जाएगा तो जिंदगी कैसी हो? ड्रीम कम ट्रू मैम, खुद को पहचानना होगा। हाँ, तो कैसा लगेगा जिंदगी के अंदर, लाइफ में कैसा लगेगा ये बताओ? मतलब लाइफ को कुछ मीनिंग मिल गया। हम जस्ट खाने और सोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमारे जीवन का कुछ मोटिव है। मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ मैम। तो प्रूव करने से ज्यादा जो आपने बोला कि मेरी जिंदगी का भी कोई मोटिव है, I think this is so beautiful. अरे इमोशनल हो रही है सुमन. So सुमन, we wish you all the best and 100% आपकी लाइफ में ये जरूर होगा. So guys, how many of you want to fulfill your dreams? How many of you? How many of you? मेरे को तो कोई बोलता है ना, मैं और हाथ ऊपर करके ना, I want to get more. I'm 64 running. मैं इस समय 64 रनिंग हूँ और अभी भी मेरे पास तो बहुत सारे सपने हैं.
बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं देखना चाहती हूँ। तो एंड आई एम अचीविंग इट एवरी डे। तो हम जनरली रुक जाते हैं क्योंकि हमारे पास साथ नहीं होता, राइट? हम अकेले पड़ जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ हूं, तो हम आपको एक जर्नी पे लेके चलते हैं। जो लोग ऑलरेडी, कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मोस्टली लोग जो है अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो नोटबुक और पेन ले लें, टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड बी हियर टोटली एंड कंप्लीटली। क्योंकि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका बिजनेस में पहला कदम पावरफुल होगा। आपका बिजनेस में पहला कदम सक्सेस आपके लिए। देखिए, लाइफ सीधी नहीं होती है, टुक 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 होती है, ऐसा होता है ना। कभी प्यार, कभी मोहब्बत, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी वेट भी ज्यादा कम, कभी बाल भी ज्यादा कम। तो मैं वैसे बता रही हूँ। तो लाइफ इज शेबी, लाइफ इज लाइक दिस। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट बिजनेस ऑन अ श्योर फुट। हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? ले लिया आपने नोटबुक एंड अ पेन? हैव यू टेकन नोटबुक एंड अ पेन? यस एंड मैम। नोबडी विल डू। अब ये फ्री वेबिनार है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री है, देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा, बिस्तरों में पड़े हैं, सोए हैं और 10 चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अब आपने ऑलरेडी 17 मिनट्स हो गए हैं, वी हैव अबाउट 40 मोर मिनट्स। बिल्कुल फोकस में मेरे साथ रहेंगे आप लोग। सो वी आर गोइंग टू सी अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। कि खास करके आप कहेंगे शालिनी विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए करती है, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों करती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी कैपेबिलिटीज को जानना है। लिखिए, कैपेबिलिटीज का मतलब होता है क्षमता। इसमें है नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज। जो भी बिजनेस आप करना चाहती हैं, आज के दिन हम बात करते हैं गिफ्ट पैकेजिंग की। गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस की नॉलेज, इसका क्या स्कोप है। दुनिया में तो है ही है, इंडिया में तो है ही है, शहरों में हर एक में है। लेकिन मेरे शहर में जहां से मैं इसको शुरू कर रही हूँ, वहां क्या स्कोप है। तो अगर मैं एक बहुत छोटी सी जगह में रहती हूँ जहां क्लाइंट कम है, तो मैं इसको इंडिया में कैसे एक्सपैंड करूंगी, B2B कैसे लेके आऊंगी। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यमुनानगर, हिसार, कपूरथला, अलग अलग जगह पे, दिस सीतापुर, दे आर डूइंग वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। हाउ विल आई डू दैट? नॉलेज। फिर इस बिजनेस को करने के लिए मुझे क्या आना चाहिए, मुझे क्या खरीदना है, मेरे को क्या रिसोर्सेज चाहिए, ये पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जनरली जब हम गिफ्ट पैकिंग बिजनेस की बात करते हैं, तो हम पता है क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं, अरे ये बास्केट बहुत अच्छी बना लूंगी, अरे ये डब्बा बहुत अच्छा बना लूंगी, अरे ये रिंग ट्रे बहुत अच्छी बना लूंगी, और इसको कोई भी खरीद सकता है जिसके यहाँ शादी है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक आई एम सेइंग राइट? एंड बस शुरू हो जाते हैं। नहीं, हमें ये देखना है डाउन द लाइन, अगर मेरे को इस बिजनेस को करोड़ों का क्रिएट करना है, तो मेरे को इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ ये एक्सपैंड हो सकता है। ये नॉलेज बहुत जरूरी है। इस नॉलेज के बिना आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको ये नहीं पता है, मेरा घर इसी से चलता है, मेरा बेटा अब्रॉड पढ़कर आया, वो मेरे साथ इसी काम में है, मेरे हस्बैंड ने 20 साल इसी में काम किया है, अब वो सिर्फ मेरा अब बिजनेस का अकाउंट देखते हैं एंड इज डूइंग। आप ये खुद सोचो कि अगर इसमें इतना पैसा नहीं होता तो यंगर जनरेशन का कोई आता। मैंने मेरी बेटी की 5 स्टार में शादी की है, इसी पैसे से किया, बेटा अब्रॉड पढ़ने गया, इसी से गया, गाड़ी है, ड्राइवर है, घर है, दैट इज विद दिस बिजनेस। तो अगर मुझे इस बिजनेस को ग्रो करना है, तो इसकी पूरी नॉलेज, इसका पूरा ज्ञान आना जरूरी है। हाउ टू ग्रो, देन कम्स, लिख लीजिए, हाउ टू ग्रो। आपको अपने लर्निंग गोल बनाने हैं। 1 से 10 के पैरामीटर के ऊपर मुझे कितना पता है, आप चैट में डालते भी जा सकते हो, साथ साथ में लिखते जाओ और चैट पे डालते चले जाओ कि भाई हाँ, मेरे को कितनी नॉलेज है। इसको आपको ना चैट पे लिखना है कि मेरे को 1 to 10 के स्केल पे कितनी है। देन वी कम टू स्किल। स्किल माने किसी चीज को बनाना, स्किल टू मेक प्रोडक्ट, कि मेरे को बनाना है। मैं पिंटरेस्ट से नकल मार के बना रही हूँ, मैं इधर से नकल मार के बना रही हूँ, मैं उधर से नकल मार के बना रही हूँ, ये एक स्किल है। लेकिन डू आई हैव अ स्किल टू डिजाइन? हर बार एक नई चीज करना, अनलिमिटेड मींस कोई भी चीज मेरे हाथ में आ जाए और वो खूबसूरत हो जाए, कुछ भी मेरे हाथ में आ जाए और वो प्रिटी हो जाए, ऐसा स्किल डू आई हैव दैट? इंट्रिकेसी से अंदर जाना, अगर मेरा कस्टमर एक स्पेसिफिक चीज मांग रहा है और मैं एक छोटे शहर के अंदर हूँ, हाउ विल आई गिव? सो आपका हर तरह का
स्किल जो कि इस बिजनेस को चलाने के चली, देन इज एक्सपर्टीज। एक बहुत छोटी सी लाइन है, सुंदर, बहुत सुंदर और अद्वितीय, जिसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सक्विजिट। एक्सपर्टीज का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जो आपका ब्रांड कहलाए। एक्सपर्टीज का मतलब है बिजनेस ग्रोथ के वो तरीके जो मेरे बिजनेस के अंदर नए कस्टमर को लेकर आए, सेल्स के वो तरीके कि जो कस्टमर आए तो वो वापस ना जाए, वो कुछ लेके जाए। एक्सपर्टीज का मतलब मैं चैट जीपीटी कैसे यूज करूंगी, मैं मेरा सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे बनाऊंगी। आज के दिन सारा जितना बिजनेस है वो सोशल मीडिया पर है। आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं मेरे पास? हाउ हैव यू कम? हाउ हैव यू कम टू मी? थ्रू इंस्टाग्राम, most of you, through Instagram and Facebook. How many of you have come to me through Instagram and Facebook? Look at the chat. अगर आप chat पे देखें तो most of you have come to me through Instagram and Facebook, right? तो आप ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया की जानकारी होना बहुत ही आज के दिन जरूरी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी होना हमें जरूरी है। तो कैपेसिटी का मतलब, कैपेबिलिटीज का मतलब है आपकी क्षमता, क्षमता नॉलेज, क्षमता स्किल, क्षमता एक्सपर्टीज। तो आपने लिखना है यहाँ पे कि मुझे ये आता है पर मुझे ये सीखना पड़ेगा, मुझे ये आता है पर मुझे ये सीखना पड़ेगा। हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं कि किस किस चीज को, क्योंकि हमने इसको थोड़े टाइम के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। कैपेबिलिटीज ग्रो की जा सकती हैं, क्षमताएं ग्रो की जा सकती हैं, आप इसे सीख सकती हैं। जितने भी आपने आज टेस्टिमोनियल देखे उन सब ने अपनी क्षमताओं को ग्रो किया। देन वी कम टू कैपेसिटी। मेरे पास कितने समय की इन्वेस्टमेंट में दे सकती हूँ? मेरे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मुझे अटेंड करना है, चाहे कुछ हो जाए। बहुत, मैं छोटे बच्चों की माँ हूँ, ये नहीं कि काम नहीं हो सकता है, काम हो सकता है, लेकिन मैं टाइम कितना दूंगी? मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मैं पूरा दिन दे सकती हूँ, राइट? मैं कुछ भी कहूँ, मेरे घर के अंदर कुकिंग मुझे ही आज के दिन करनी है, तो मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी मेरी कैपेसिटी कितनी है काम करने की। मैं तो सारा दिन काम करती हूँ, मेरे पास, मैंने घर की किसी जिम्मेदारी को नहीं लिया हुआ, सबके लिए स्टाफ रखा हुआ है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं 2-3 जनों को रख के 20-30 हजार रुपए सैलरी भी देती हूँ, उसकी जगह मैं 3 लाख रुपए कमा लेती हूँ। तो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो मनी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। हाउ मच मनी इन्वेस्टमेंट कैन यू डू? अब हम क्या करते हैं, पैकर्स सामान तो बहुत सारा खरीद लाते हैं, रिबन ये वो फलाना ठिकाना, और उसके बाद में सोशल मीडिया के लिए पैसा नहीं है, मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, और इन चीजों के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। फिर वो सामान बिकता नहीं है, वो सामान आपके पास पड़ा रह जाता है, एंड देन यू आर इन अ क्रक्स कि मैं इसमें नया पैसा आप डालना नहीं चाहते हो, यू डोंट पुट द मोर मनी इनटू इट। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट सामान खरीदने में जोर नहीं आता है क्योंकि वो डबल हो जाएगा, लेकिन और सोशल मीडिया पे 2 रील बूस्ट की, 3 रील बूस्ट की, रिजल्ट नहीं आया, फुस गए कि हमने नहीं करना, इससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, हाउ कैन वी डू? सो मनी इन्वेस्टमेंट, मनी रिसोर्सफुलनेस कैसे लेके आनी है? एफर्ट इन्वेस्टमेंट, कितना एफर्ट मैं कर सकती हूँ, हम हर स्लिक की अलग है। मैं सुबह 3 बजे से उठ के रात को 11 तक बिजनेस के ऊपर काम करती हूँ, मेरी इतनी एफर्ट इन्वेस्टमेंट है। आपकी एफर्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है कि आप कितना काम, कितना टाइम लगाना चाहती हैं या लगा सकती हैं, या आप में कितनी शक्ति है? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स आप में कितनी एनर्जी है। सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? व्हाई आर वी टॉकिंग? हमने सपना देखा कि भाई हम काम करेंगे और हम तो करोड़ों कमाएंगे। टाइम मेरे पास कितना है? सिर्फ 2 घंटा। मैंने खाना भी बनाना है, मैंने ये भी करना है। एक बार की मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बता दूं। एक मेरी स्टूडेंट क्लास करने के लिए आई, तो उसके हस्बैंड बहुत बड़ी एमएनसी में बहुत बड़ी पोस्ट में थे। वो मेरे पास आके कहने लगे, कितना पैसा कमा लेगी ये, कितना पैसा कमा लेगी जो आप गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में ये आना चाहती है? तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपकी क्या सैलरी है, आप कितने पैसे कमाते हो ये बता दो। तो उन्होंने बोला, मैं पूरे साल के अंदर, पूरे एंटायर ईयर के अंदर तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब कमाता हूँ पूरे साल में मेरी सैलरी में। मैंने कहा जी ऐसा करिए, 15,000 का एक कुक रख दीजिए इसके लिए, एक सफाई वाली मेड रख दीजिए, 20,000 की ये इन्वेस्टमेंट करिए, 2 साल बाद ये आपको 1 करोड़ रुपए कमा के दे देगी घर से काम कर।
पर ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि मेरी बीवी खाना बना रही है, मेरी बीवी घर के 4 काम कर रही है, और फिर वो आपको इतने पैसे कमा के भी घर के अंदर ले आए, तो कैसे होएगा? समय तो कहाँ से निकालेगी वो समय? फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अगर हस्बैंड कुछ कह रहा है, सासू जी कुछ कह रही हैं, सो गाइस, कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, यू नीड टू पहले रियलाइज कि मेरी क्या कैपेसिटी है, मेरे कितनी नॉलेज है, कितना स्किल है, कितनी मेरे में एक्सपर्टीज है, कितने पैसे मैं दे सकती हूँ, कितना समय लगाऊंगी, कितना एनर्जी लगाऊंगी, और मैं कितना एफर्ट कर सकती हूँ। इसे भी बढ़ाया जा सकता है 100%, कि अपने आप को वर्क लाइफ बैलेंस को करके। इज इट क्लियर इतना? यहां से आपका ये निकला कि मेरी बैंडविड्थ कितनी है। तो जब मैंने काम शुरू किया, तो मैं एक बहुत बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर की बहू भी थी। 5 लाख रुपए से कम में की इनकम से ज्यादा, मतलब प्रॉफिट से ज्यादा कम से मेरा काम नहीं चल सकता था। तो ये मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी थी, बिल्कुल क्लैरिटी थी कि मैंने बिजनेस जो करना है गिफ्ट पैकेजिंग का करना है, और मुझे कम से कम इतनी प्रॉफिटेबिलिटी शुरू से चाहिए, थोड़े से नहीं चाहिए। नहीं तो ना मेरे पास ड्राइवर हो सकता है, ना गाड़ी हो सकती है, ना मैं पॉश लोकेलिटी में रहूंगी, कुछ नहीं हो सकता मेरे पास में। सो आई विल डू दैट। नाउ यू विल हैव टू टेल मी हाउ डिड आई डू दैट। तो मैं प्रश्न पूछती हूँ, आंसर दो। इस प्रश्न का उत्तर उसमें है कि मैंने विद इन 1 ईयर, मतलब पूरा साल भी नहीं लगा, मैं तो बोलूंगी 6 महीने के अंदर मैं 5 लाख रुपया महीना कमाने लग गई। तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, उसमें आंसर, आप आंसर लिखिएगा चैट में। पहले प्रोडक्ट बनाएंगी इतने पैसे कमाने के लिए, कि पहले क्लाइंट खोजेंगे? पहले क्लाइंट डिसाइड करेंगे। लिखिए, प्रोडक्ट और क्लाइंट। मंजू, आई डिड नॉट इन्वेस्ट मच मनी, मेरे पास पैसे थे ही नहीं। मैं आपको बताऊंगी अपना कौन हूं, तो आपको बताऊंगी। प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट, क्लाइंट। तो कुछ कह रहे हैं प्रोडक्ट, और कुछ कह रहे हैं क्लाइंट, और कुछ कह रहे हैं बोथ। अब चलते हैं। अगर मेरे पास में एक प्रोडक्ट है, सो कॉल्ड मेरे पास में ये एक प्रोडक्ट है, आई हैव दिस प्रोडक्ट विद मी। अब मुझे इसका क्लाइंट चाहिए, एक कांच के जार का। तो ये कौन खरीदेगा बताओ मेरे को? हु विल बाय दिस फ्रॉम मी? लिखो कौन क्लाइंट हो सकता है इसका, लिखो कौन क्लाइंट हो सकता है, राइट डाउन। तो अगर ये, इसकी कीमत मैं ये बोल रही हूँ कि तकरीबन 1000 रुपए की है, 1000 रुपीज की है। जिसको नीड होगी, गुनी दिस इज वेरी वेग, जिसको जरूरत होगी, कौन इसको खरीदेगा? बहुत, एक कांच का है, पतला सा है, क्या लोग इसको घर के लिए, हाउस होल्ड पर्पस के लिए खरीदेंगे? मुझे लगता है टूट जाएगा, इसमें टैसल लगा है, मोतियां लगे हैं, घर में तो वैसे ही नहीं चलेगा। कोई कह रहा है बेकरी, कोई कह रहा है कुछ। आप देख रहे हो कितना कंफ्यूजन है यार, आप देख रहे हो कितना कंफ्यूजन है। आर यू सीइंग? होटल, ये वो, यू आर कंफ्यूज हु विल बाय। अब आप जब अपना एड रन करेंगी, या इसको ऑफर करेंगी, तो आप किसी को भी ऑफर करेंगे कि आएगा, आएगा, जो आएगा वो ले जाएगा। देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट। नाउ लुक एट द अदर साइड ऑफ इट। मुझे ये मालूम है कि फलाने बंदे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी रियल लाइफ से ही बताती हूँ। जब मैंने शुरू किया, मेरी सफलता हुई, मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मुझे ये 5 लाख रुपए की आमदनी कौन दे सकता है? कौन दे सकता है मुझे बताओ आप? हु कैन गिव मी 5 लाख रुपीज आमदनी? किस प्रकार का व्यक्ति मुझे 5 लाख रुपए की कमाई दे सकता है? लिखो, कौन दे सकता है? इससे आप सीख जाओगे, आप मेरे साथ काम करोगे, आप सीख जाओगे सारा, आप अपने लिए कर पाओगे। अगर आपने आंसर नहीं किया, चाहे गलत करो, तो आप कर नहीं पाओगे, बाद में सोचते रहोगे। इवेंट मैनेजर मुझे 5 लाख नहीं देता। रिच पीपल, HNIs, वंडरफुल, वंडरफुल। वो भी रिच पीपल, ऐसा रिच पीपल जिसके पास खा के पी के खर्चा करके पैसा खर्चने को है, पूरी जरूरतों के बाद, राइट। तो फिर मैंने सोचा, अब ऐसा रिच पीपल कौन है, जल्दी से बताओ। ऐसा रिच पीपल कौन है कि जिसके पास सारा कुछ खर्चा करके भी इतना पैसा है, इतना पैसा है कि लॉट ऑफ मनी? जल्दी से बताओ कौन होगा। मैं बताऊं? मैं बताऊं कि आप बता रहे हो? कॉर्पोरेट्स गिनती के पैसे देते हैं। मैं बताऊं? जो अप्रिशिएट करते हैं वो जरूरी नहीं है खरीदेंगे। कह रहा है अंबानी। मैंने नीता जी के लिए भी काम किया है, वर्क फॉर नीता जी ऑल्सो। बैंक्स कभी नहीं देंगे आपको, कह रही है बैंक के पास पैसे होंगे।
So entire gutka, whiskey, builders, exporters. Do you agree? These are the people, this is the lobby people. Yes, big businessman. फिर मैंने ये सोचा कि ये जो इतने बड़े बड़े रिच पीपल हैं, HNIs हैं, ये शॉपिंग कहाँ करते हैं? तो ये पता लगा कि ये तो बाजार जाते ही नहीं है। डिजाइनर इनके घर पे जाके देता था। जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो एम्पोरियो वगैरह नहीं था, तब ब्रांडेड स्टोर्स नहीं होते थे। एट दैट टाइम ब्रांडेड स्टोर्स वर नॉट देयर। तो उस समय सिलेक्ट सिटी था दिल्ली के अंदर एम्पोरियो, तो वो तो बाहर जाते हैं, या डिजाइनर उनको भेज देते हैं, या वो सबसे प्रीमियम शो में जाते हैं, सबसे जो महंगा शो होता है उसमें जाते हैं, जहां पे आम आदमी नहीं पहुंच पाता। अब मेरे पास, तो मैं क्राइसिस में दिल्ली आई, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, तो पैसे तो मेरे पास थे नहीं। तो मैंने ये देखा, भैया अब्रॉड भी नहीं, उनके साथ पहुंचू भी कैसे, आज तो मेरे को कोई डिजाइनर की तरह भी नहीं जानता है। तो उस समय विवाह का लॉन्च हुआ। विवाह का शो 1.5 लाख का था 2002 में। वो शो 1.5 लाख के स्टॉल में। आज की कीमत क्या है? 1.5 लाख रुपए की। उस समय का 1.5 लाख, आज का क्या है कीमत बताओ? कम से कम 10 लाख प्लस, राइट? सो 2002 में वो 1.5 लाख का स्टॉल था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से उधारे लेके, मेरे फूफा जी से उधारे लेके पैसे, उन्हें इमोशनली एक्सप्लॉइट किया था। मैंने कहा फूफा जी मेरा गहना बिक जाएगा अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे। मेरे फूफा जी बड़े रिच थे, तो उन्होंने कहा मैं क्यों मेरे वजह से क्यों बिक जाएगा? मैं कहा क्योंकि आप उधारे नहीं दे रहे हो पैसे, 6 महीने के लिए दे दीजिए, आपको वापस दे देंगे। बेचारे इतने डर गए कि फैमिली में बदनामी हो जाएगी कि मेरी वजह से इसका गहना बिक जाएगा। उन्होंने मुझे ये पैसे दिए, जो मैंने स्टॉल बुक करा। तीसरे दिन पहला कस्टमर मेरा हीरो ग्रुप था, दूसरा जी टीवी, देन वंदना लूथरा, फिर तो कहीं मैंने कहीं देखा ही नहीं। मतलब कैन यू इमेजिन? ये कब हुआ? When I knew my client। हम ये बोलते हैं हमने पैकिंग बनाई और कोई भी खरीद लेगा, कौन मानता है इस बात को? जिसके घर में शादी होगी वो ले लेगा, जिसको चाहिए होगा वो ले लेगा, हर कोई मेरा क्लाइंट है। अगर आपका ये कहना है कि हर कोई आपका क्लाइंट है, तो आपका क्लाइंट कोई है ही नहीं। Nobody is your client। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो चीजें मैं बनाने की सोच रही हूँ, जिस तरह की चीजें मैं बनाने की सोच रही हूँ, उसमें मेरा क्लाइंट कौन सा है और उसकी कॉन्वर्जेशन क्या होगी। आर यू गेटिंग इट? इज इट क्लियर? सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? अगर आपने बिजनेस शुरू नहीं किया है, अगर शुरू किया तो प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तो हमने उस प्रोडक्ट के एप्रोप्रिएट क्लाइंट खोजना है। लेकिन अगर हमने बिजनेस नहीं किया है, तो पहले हमने क्लाइंट खोजना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट? प्लीज टाइप इन क्लियर, टाइप इन क्लियर, तब हम आगे चलेंगे। विल मूव अहेड। वंडरफुल। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग वैल्यू? आर यू गेटिंग वैल्यू? इज इट अ बल्ब ऑन मोमेंट? कुछ समझ में आ रहा है? इज इट बल्ब ऑन मोमेंट? ये क्लियर आ रहा है? वंडरफुल। नाउ सो हमने अपनी कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज को देखा। अब उनको बुला लो, अब है सदा ने। हाँ, तो उसके बाद में हमने क्लाइंट की प्रोफाइलिंग की यहाँ पे, कि मेरे क्लाइंट का उम्र क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, उसकी जॉब क्या होगी, मैरिड होगा, अनमैरिड होगा, ए सिटी होगा, बी सिटी होगा, एजुकेशन क्या होगी, उसका इनकम ब्रैकेट क्या होगा। मैं पूरा, अगर मुझे सब कुछ मालूम है कि मेरा क्लाइंट क्या होगा, तो देन मेरा जो प्रोडक्ट है वो उससे बिल्कुल फिट हो जाएगा। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। तो अगर स्नेहा who's in her late 20s और early 30s आज वो पैकिंग अपने लिए खरीदेगी, तो फन पैकिंग, यू नो, मोर इको फ्रेंडली, एम आई राइट स्नेहा? मोर इको फ्रेंडली, मोर ऑर्गेनिक। अब वो खुद ही कह रही है कि मुझे कारीगर बेस्ड चाहिए। और अगर कोई 50-60 ईयर्स का बंदा है, उसको कैसा चाहिएगा? उसको हो सकता है ट्रेडिशनल चाहिए हो, उसको जो है मोर इंडियन चाहिए हो, उसको उसके अंदर उसको लड्डू चाहिएगा, स्नेहा केक मांगेगी। तो एज वगैरह फर्क पड़ता है। एक, अगर जब मैंने काम शुरू किया 2003 के बिगिनिंग के अंदर अनाउंस किया, तब माएँ पैसे देती थी, दुल्हा दुल्हन तो आते ही नहीं थे शॉपिंग के अंदर। लेकिन आज के दिन आपको लगता है कि माएँ सिर्फ डिसाइड कर सकती हैं? इट इज दूल्हा और दुल्हन जो सब कुछ डिसाइड करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि द ब्राइड एंड द ग्रूम डिसाइड्स एवरीथिंग?
तो अगर ब्राइड एंड ग्रूम डिसाइड कर रहे हैं तो चॉइस सेम हो सकती है व्हाट द मदर हैड? नो. So you need to understand that the buyer has changed. And if the buyer has changed, the product need to change. How many of you agree? That product need to change. The product has become different now. फिर हम सोचते हैं यार मैं ये बना रही हूँ ये बिकता क्यों नहीं है? क्योंकि आपका प्रोडक्ट और क्लाइंट फिट नहीं है, इनकी शादी नहीं हुई है आपस में, क्लाइंट कुछ और चाह रहा है, आप कुछ और बना रहे हो, या आप बहुत अच्छा बना रहे हो पर आपके पास आसपास जो लोग हैं उनको ये नहीं चाहिए. मेरी एक स्टूडेंट सरिता विहार में डिजाइनर पैकिंग बनाती थी और वो सब उसको बेचने की कोशिश कर रही थी. सरिता विहार में वो बिक ही नहीं सकता था. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेक सेल. तो देन अल्टीमेटली उसको ये समझाया कि सरिता विहार में रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सरिता विहार में ही बेचना है. You can move out, you can move, ये दे दो मेरे को, you can move through Instagram, you can sell through Amazon, you can sell through so many people. Now tell me another thing, how many of you feel कि मैं अगर कि मटेरियल हो तो ही चीजें सुंदर, अब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, we are talking about production now. How many of you feel कि अगर मेरे पास में सामान अच्छा है तो ही अच्छा चीज बन सकता है? जल्दी से बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सो? बताओ, जल्दी से बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? तो आज मैं आपको कुछ दिखाऊं, आज मैं आपको कुछ दिखाऊं, सिंपल रिबन वर्क्स दिखाऊं कुछ, और आप लोग मेरे को बताना, जल्दी से बताओ. हाँ, नॉर्मल चीजों से भी बना सकते हैं. स्वाति, आप देखना चाहते हो कुछ चीजें जो सीधी सादी चीजों से हम कितनी खूबसूरत चीजें बना सकते हैं? तो आई विल जस्ट अब है, प्लीज आप लेंगे. तो माय सन इज हियर. मैं आज आपको अपना शोरूम भी दिखाऊंगी और तो एंड आई एम गोइंग टू शो यू फ्यू प्रोडक्ट लाइन कि यू विल बी अमेज्ड. मैं ये वाला आप बंद कर रही हूँ. कैन यू ऑल हियर मी? जस्ट गिव मी थम्स अप स्नेहा. I can see you. Okay, you can hear me. So I'm going to show you now some few very simple things here. और मैंने उसको यहाँ पर इस तरह से करना चालू किया. Can you see properly, all of you? मैंने आपको स्पॉटलाइट नहीं किया अभी. Wait. अब दिख रहा होगा आपको बेटर. तो ये देखिए, हमने ये जल्दी से बताओ, यस एंड नो. इस क्यों नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, यस सेकंड. हाँ, या आपको बताओ मेरे को जल्दी से कि इसका कोई नहीं देगा, पर इसके पैसे देगा, इसका पैसा देगा कि नहीं देगा? टेल मी. यस, देगा. अब अगर मैंने ये और ये बनाया और इसके ऊपर मैंने टी लाइट्स लगा दी, अब इसके पैसे मुझे देगा कि नहीं देगा? जल्दी से बताइए. देगा. अब मैंने एक मेरे बॉटल्स के अंदर आई हैव मेड दीज स्टिक्स. आई हैव मेड दीज स्टिक्स हियर. ये स्टिक्स बना रही हूँ, राइट, ताकि हम इसको कहीं सजा सकें. नाउ आई एम गोइंग टू पुट देम टुगेदर. So what I have here is
अ बास्केट। ये देखो आप, ये मेरे पास बास्केट है और इस बास्केट को फिरोशे की एक जैपनीज स्टाइल की टाइंग है, उससे मैंने बांध रखा है। 2 जार लिए और इन 2 जार्स को इसमें टिकाया और इसके ऊपर दिवाली हो या आजकल तो राखी आ रही है, आप ट्री लाइट की जगह सिर्फ फूलों के रूप में इसको लगा सकते हैं। ये लगाया, ये देखिए, यू गॉट। देन ये दोनों फूलों के जार पीछे में रखे। सिर्फ रिबन का खेला है, तकरीबन इसके अंदर 8 मीटर रिबन लगा है। रिबन की कीमत कितनी होती है, जो लोग पैकिंग कर रहे हैं, सैटिन का ऑर्डिनरी रिबन है ये, कोई खास रिबन नहीं है। देन अपने कॉन्फेटी ली हमने और इसको यहाँ पे लगा दिया, यहाँ, ताकि जो थोड़ी थोड़ी ओपन स्पेस है उसको हम भर दें, यहाँ भर दें इसको। तो टोटल जो नेट बंधी हुई है वो 30 रुपए मीटर की नेट है जो इसके ऊपर बांधी है। टोटल डेकोरेशन का खर्चा मेरा 130 रुपए के करीब का है। टोटल डेकोरेशन का खर्चा मेरा 130 रुपए के करीब का है। आप मुझे ये बताइए जल्दी से, आपको इसके बास्केट का अलग है भाई, बास्केट का खर्चा बताना भूल गई हूँ, बाकी तो गिफ्ट है। टेल मी हाउ मच मनी एंड इज इट लुकिंग प्रिटी एंड हाउ मच मनी विल द क्लाइंट गिव? टेल मी दैट, हाउ मच मनी विल द क्लाइंट गिव? राइट, कितने पैसे आपको क्लाइंट देगा? 1200, 1000, 500 रुपए तो बहुत कम बता रहे हो यार, बास्केट भी लगी हुई है, 250 रुपए की तो बास्केट है मेकिंग में। हाँ, एंड डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंट। अगर मैं ये आज बेचने जाऊं, अगर मैं ये पीस बेचूं मेरा 100 प्लस में, तो ये पीस बिक जाएगा, सिर्फ ओनली दिस पीस। आई कैन सेल लाइक 250-300 रुपए में, तो मैं यही बेच सकती हूँ। सिर्फ इस रैपिंग को अगर मैं इसके ऊपर एक फूल यहाँ पे और लगा दूं, मैं इस रैपिंग को बेच लूंगी 400-500 रुपए में, तो मेरे 1000 रुपए के तो 3 पीस हो गए, जिसके अंदर की ये सब चीजें अलग हैं। इसमें आई विल गेट एटलीस्ट 1500 रुपीज वाइल स्पेंडिंग डेकोरेशन के अंदर सो लेस। और मैं दिखाती हूँ, और काम क्या किया, सिर्फ रिबन। तो ये एक्सपर्टीज की जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो इसकी बात कर रही हूँ कि ये एक्सपर्टीज की सुंदर चीजों को हम कैसे क्रिएट कर सकते। देन कम्स अनदर थिंग, क्या है मेरे पास यहाँ पे, रिबन नहीं है, तो ये जो है ये रिबन है यहाँ। मैं इस रिबन को घचर मचर खोलो, ये ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं, जैसे अधजड़ लोग होते हैं जिसको कुछ नहीं आता करना, इस तरह से उसको गुंजल करूं। गुंजल करके मैं उसके अंदर इस तरह से ये रिबन्स को ये गोटे को डाल दूं, और कुछ मैं इसके अंदर इस तरह से फ्लावर्स को पेस्ट कर दूं, एक एक दो दो करके, तो ये मालूम है क्या बनेगा? बस इसी तरह से आई विल हैव लाइक दिस बेल्ट, I'll have this belt here. अब मैंने बीच में केक रखा, मेरा अभी राखी आ रही है, केक को ऊपर से किचन के किसी भी बोल से ट्रांसपेरेंट से ढका और इसको यहाँ कर दिया। माय पैकिंग इज रेडी। एक आधा गोटा अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, एंड दिस इज रेडी। तो क्विक, कोई ज्यादा आर्टिस्ट, तो आइडिया, एक्सपर्टीज, नॉलेज, ये नॉलेज है। सेटिन रिबन है जो 10-12 रुपए मीटर का आता है, चौड़ा है इसलिए, पतला उससे कम का आता है। सो यू नीड टू हैव द स्किल टू डू। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अनदर थिंग, कि सिर्फ रिबन के ऊपर ही हम वर्क कर रहे हैं और किसी चीज पे वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और व्हाट आई हैव हियर, अब इसी रिबन को मैंने प्लीट्स में कर लिया। आई हैव डन प्लीटिंग हियर, ये देखिए प्लीट्स बना लिए। अगर अब इस प्लीट्स को मैं फ्लावर में क्रिएट करती हूँ, या ये देखो कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बन रहा है, इट इज सो नाइस। डोंट मिस आउट द कलर, डोंट मिस आउट द क्वालिटी। सो वी हैव लवली फ्लावर हियर। अभी इसी फ्लावर से मैं प्ले करूंगी, आई विल बी गोइंग टू प्ले विद दिस फ्लावर।
तो ये यहाँ पर प्लेट है, ये खुर्जा एक हमारे इंडिया में प्रांत है, उसकी ये प्लेट है। और मैंने क्या किया है, इसी फूलों से एक बो बना दी, मैचिंग के सब चीजें लिए और यहाँ लिया, इसको लगाया और इससे मैचिंग का एक प्रॉपर बो बना के आई पुट इट हियर। नाउ व्हाट आई हैव डन इज कि ऐसा ही एक बॉर्डर, जो ये बॉर्डर बनाया था उसमें साइड से इसको स्टिच करके एक के ऊपर एक रख के आई एम पुटिंग दिस कैंडल। अब ये देखो, ये कैंडल मैं ऐसे रखूं, मैंने इसको एक बोल में वैक्स को भरवाया है। अब मैं इस कैंडल को ऐसे रखूं या मैं इस कैंडल को ऐसे रखूं, राइट, दैट्स आवर विश। देन अनदर कैंडल इन अ ग्लास। ये सारा लोकल मैंने जो सरप्लस की मार्केट है उससे उठाया, एंड देन फ्रॉम देयर आई हैव पिक्ड इट अप। ये यहाँ आ गया एंड आई कैन पुट दिस फ्लावर हियर समथिंग। अगर मुझे इसको और एलैबोरेट करना है तो कुछ स्ट्रिंग्स को डाल के इस तरह से मैंने कर दिया, ऑल रिबन वर्क। और इसको थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि क्लाइंट मेरे को और पैसे देगा तो मैं इसके अंदर, ये हमारे इंडिया में इसे शेल क्राफ्ट बोलते हैं, जितने भी चेन्नई, बैंगलोर ऐसी जो जगहें हैं वहां पे मिलता है। एंड माय हैम्पर इज रेडी and my sample is ready. How do you like it? How do you like it? कैसा लग रहा है आपको? अब मैं I'll request अभय कि वो हमारा शोरूम दिखाए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 2002 में जब हमने शुरू किया तो मैं एक 3 कमरे के फ्लैट में थी और हम बेड नहीं लगाए, हमने गद्दा लगाया। हम दिन के समय उन गद्दों को दीवार के साथ खड़ा कर देते थे और पूरे घर के अंदर काम बनता था, माल बनता था, राइट, और उसको करते थे। मैंने वैसा वहां पे 2002 से लेके 2006 तक उसमें काम किया, 2.5 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट किया। और फिर हमने अपने लिए नया ऑफिस लिया, 2 फ्लोर लिए उस समय। 2.5 करोड़ होंगे तो 2 फ्लोर बड़े आराम से ले लेते हो आप, किराए पे लिए। और अगले 4 साल के अंदर हम 5 फ्लोर ले चुके थे वहां पे। और अब ये जो ऑफिस है आफ्टर कोविड के बाद में मेरे बेटे ने लिया है, इट्स अ ब्यूटीफुल ऑफिस। सो आई वुड लाइक यू टू सी कि अगर ये बिजनेस में ग्रोथ आती है तो कैसे आती है। 1250 स्क्वायर फीट का ये फ्लोर है और हमारे पास दो फ्लोर है ऐसे। तो हैव अ लुक, जस्ट शो देम अराउंड। तो आप इसको देखिए जरा कि हाउ डज इट वर्क, जस्ट हैव अ लुक हाउ डज इट वर्क। सो अंधेरा किया हुआ है क्योंकि जहां मैं बोल रही हूँ वहां पे लाइट की हुई है, इसलिए वहां पे। सो दिस इज, ये जो लड़कियां आप देख रहे हैं ये पर्ल की इंटर्न है, ये मेरे पास डिजाइन सीखने के लिए आती हैं। and then we have some guests over and we have this store going on like this. यहाँ आजकल मैं डिजाइन कर रही हूँ तो डब्बे वब्बे रखे हुए हैं। This is our flower segment. How are you liking it? Yeah. How many of you will like to have an office like this? How many of you will like to have an office like this? इसके पीछे जो है working area है and we have a whole floor down also. Tell me, how many of you would like to have an office like this? Isn't it wonderful? So now back to me. तो जब मैंने ये काम शुरू किया, so I always had a dream of having a 5-floor office, which I had pre-COVID. Then I broke my leg, so we took a flat office, and from there this all has been created. So what I want to tell you is that there is a possibility of growth into this business is tremendous. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे बढ़ाते हैं, कैसे आप इसको लेके जाते हैं। आर यू इंस्पायर्ड? आर यू इंस्पायर्ड? आर यू? तो यहाँ तक की जर्नी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि what was there which got me here and what was there which got my students there. Do you want to know? कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज के साथ में और क्या चाहिए था, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो और क्या चाहिए था? सो लिख लीजिए, टेक डाउन योर नोटबुक्स एंड अ पेन। ये जरूरी है, आपका माइंड जो है उसका प्ले है, पोटेंशियल यानी क्षमता। आपको लर्निंग गोल बनाने हैं, आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने आप को काबिल बनाना है। गाड़ी खरीदने के बाद अगर आपने ड्राइवर को दी है तो गाड़ी ड्राइवर ही चलाएगा,
आप कभी चला नहीं पाएंगे अगर आपने सीखी नहीं। सो ड्राइवर है चाहे नहीं हो, आपको आनी चाहिए ताकि आपकी गाड़ी को आप चला सकें। अपने बिजनेस को चलाना, कैसे चलाना आपको आना चाहिए। आता सब कुछ है लेकिन एक्शन में नहीं है। नोइंग डोमेन में सब कुछ है, राइट, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं है। देन हाउ, कुछ नहीं होगा। सो पोटेंशियल प्लस एक्शन, और उसके साथ में हमें चाहिए सर्टेनिटी, यानी दृढ़ निश्चय। नो मैटर व्हाट हैपेंस, वी आर ग्रोइंग, नो मैटर व्हाट। सो मेरे को किसी ने डांटा, घर में किसी ने बोला, मैं दाएं बाएं नहीं होऊंगा, मैं तो काम करूंगी। मुझे किसी ने ये बोला, तो ये जो ब्लेम गेम है, फैमिली ये कह रही है, वो ये कह रही है, चाहे कुछ हो जाए, मैंने सफल होना है। आई ब्रोक माई लेग, मैंने काम करी, 9 महीने ग्राउंडेड थी, कोविड आया, काम करा, आज मैं 64 साल की हूँ, काम कर रही हूँ। चाहे कुछ हो जाए, वी आर गोइंग टू बी इन एक्शन। और जब पोटेंशियल, एक्शन एंड सर्टेनिटी तीनों चीजें इकट्ठी मिलती हैं तो आता है रिजल्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू डू दैट? How many of you are going to grow your potential? How many of you are going to take action? How many of you are going to be दृढ़ निश्चय कि मेरे को ये करना ही करना है ताकि मेरी जिंदगी में रिजल्ट आ जाए? कितने जने हो आप यहाँ पर कि आपको ये करना ही करना है? आपकी आज की रियलिटी क्या है? क्या है आज की रियलिटी? मैं करना चाहती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे कोई करने नहीं देता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है। आपकी आज की रियलिटी क्या है और आपके सपने क्या है? व्हाट डू यू वांट टू डू? मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू वांट टू डू, राइट? और आपके जो सपने हैं, जिसको देख के स्नेहा ने बोला ऐसे हो जाए, जिसको देख के सुमन ने बोला वैसे हो जाएगा, आप इन सपनों को पाने के लिए क्या कर रही हैं बताइए? अर्चना, मीनाक्षी, आप इन सपनों को पाने के लिए क्या कर रही हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप यहाँ पर आए हो इस वेबिनार में, ये आपने पहला स्टेप आज ले लिया है। यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। आई अप्रिशिएट यू, आई सैल्यूट यू कि आप यहाँ पर हैं ये करने के लिए कि हाँ मैं मेरी जिंदगी में कुछ चाहती हूँ, अब पीछे नहीं मुड़ना है, अब आगे जाना है। तो मेरी इन्विटेशन है आपको कि मैं अपने बारे में बताऊं। मैं खुद एक केस स्टडी हूँ, हिंदी मीडियम से एजुकेटेड हूँ। आई एम अ केस स्टडी जस्ट लाइक यू, आई एम जस्ट लाइक यू। 1961 में मेरा जन्म हुआ। मैं अमृतसर में बहुत छोटे से शहर के अंदर था, अमृतसर इतना मॉडर्न नहीं था। 20 साल मैं मेरे पापा के पास रही, फिर मेरी शादी हो गई। जब मैं 19 साल में थी सगाई हो गई, 20 में मेरी शादी हो गई और मैं कानपुर के बहुत ही रिच फैमिली की बहू बनी, जिसकी सड़क का जो नाम था वो भी मेरे हस्बैंड के फादर के नाम पे था, ग्रैंडफादर के नाम पे था। 1998 में दोनों परिवारों के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। एक दिन मेरे यहाँ पर 8 गाड़ियां थी और दूसरे दिन एक भी नहीं थी। मैं जनूनी तो हुई, मेरी बेटी थी 16 साल की, 16.5 साल की, मेरा बेटा था 13 साल का। मुझे चिंता थी इनका क्या होगा। प्रॉपर्टीज बिकी, सारे फार्म हाउसेस बिकने लग गए। जब बात गहने पे आई तब मैं सोच में पड़ गई कि आज अगर पर्सनल सिक्योरिटी ये भी बिक जाएगी तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। उस समय शादियां जल्दी हो जाती थी। मैंने उनसे बोला घर पे कि मुझे काम करने दिया जाए। उन्होंने बोला हमारे बहू, घर की बहुएं काम नहीं करती। बहुत सहेज के रखते थे बहुओं को, बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। अब मेरे पास चॉइस थी कि मैं वहां पे रहूं, मेरा गहना बिकता रहे और वेट करूं कि घर के मेन कब काम करें। पर मैंने चूज किया कि दैट आई विल कम टू दिल्ली एंड आई विल वर्क। मेरे पापा यहाँ थे, वो तो मेरी सपोर्ट नहीं कर सके क्योंकि वो बीमार हो गए थे एंड ही वेंट टू वृंदावन। लेकिन मैं यहाँ पर आई और 2003 में मैग्निफिसेंस गिफ्ट पैकेजिंग का ये भी किसी और दिन बताऊंगी कि कैसे आ गया, फिल्मी स्टोरी है बिल्कुल। शुरू किया 2006-7 तक मैं 2.5 करोड़ पे पहुंच गई थी। 2007 में मैप का जन्म हुआ, जहां पे आप आज हैं, जिस वेबिनार में आप आज हो, वो मैग्निफिसेंस एकेडमी ऑफ पैकेजिंग प्रोफेशनल। याद रखें, प्रोफेशनल। आई डोंट मेक यू डिजाइनर, आई मेक यू प्रोफेशनल, अ गुड प्रोफेशनल हु अर्न्स मनी। देन आज के दिन मैं क्या हूं? मैग्निफिसेंस की फाउंडर हूँ, मैप की फाउंडर हूँ। अद्वितीय आहार मेरी एक ट्रेडिंग कंपनी है जहां पे मैं खाना पीना देती लेती हूँ। पैशन टू प्रोफेशन मेरा एक प्लेटफॉर्म है। 72 ट्रेनर्स मॉड्यूल मैंने लिखे हैं। आई एम अ स्पिरिचुअल रीडर।
कम से कम 50,000 से ज्यादा, बल्कि अब तो लाख हो गए होंगे, उनको मैंने फ्री वेबिनार दिया, जैसे कि आपको आज मैं दे रही हूँ। आप ये सोचोगे कि शालिनी तू ये करती क्यों है, वाई आर यू डूइंग दिस। जिसमें मेरे पास पैसा नहीं था ना, मेरी बेटी बहुत ही, शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल, वेरी स्मार्ट, वेरी ब्राइट, उसकी मैं शादी नहीं कर पा रही थी। लोगों को लड़की नहीं दहेज चाहिए था, बहुत ऊंचे घर से थी, संबंध बहुत ऊंचे घर के आते थे। मुझे पहली बार जिंदगी में ये पता लगा कि पैसे की कितनी महत्ता है। जब मैं मेरे बेटे को एडमिशन के लिए लेकर गई, हो गया उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन, पर जब वो ट्यूशन के लिए जाता था तो 2-2 महीने में ट्यूशन के पैसे नहीं दे पाती थी। टीचर बहुत अच्छी थी, वो वेट करती थी। आई रियलाइज्ड मनी इज सो इम्पोर्टेंट। मैंने जब क्लासेस शुरू की और मेरे स्टूडेंट्स ने पैसा कमाना शुरू किया, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। आज के वेबिनार से पहले भी बहुत सारे दिखाए गए आपको। तो याद रखें, मैंने उस दिन ये डिसाइड किया, होम मेकर थी मैं, आई वॉज अ हाउस वाइफ, आई वॉज अ होम मेकर, कि मैं वो करूंगी ताकि किसी भी हाउस वाइफ और कोई भी होम मेकर को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में प्रॉब्लम ना हो। वो वर्क लाइफ बैलेंस कर सके, अपने घर को संभाल सके, उसके साथ पैसा कमा सके, क्योंकि मैंने सब वो कुछ किया था, इसलिए मैंने ये किया। आर यू वांटिंग टू डू यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? द क्वेश्चन इज दिस। यू आर हियर, you want to do something, that's for sure, I know that, लेकिन are you ready to move ahead? तो अगर आप ये देखो, मैं हिंदी मीडियम एजुकेटेड थी, ग्रेजुएट नहीं थी। मुझे ये लगा कि भाई मैं 2.5 करोड़ से ज्यादा इसलिए नहीं ग्रो कर रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं। तो मैंने 52 साल की उम्र के अंदर आई वेंट टू मुंबई। मैंने विमेन मैनेजर प्रोग्राम किया, WMP प्रोग्राम SP जैन से, BCI बिजनेस कोच प्रोग्राम किया, 8 लाख रुपए का ये प्रोग्राम था। 2 साल का टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम किया। पागल हो गई, इतना पढ़ा कि दिमाग में स्ट्रेस होने लग गया, तो मेडिटेशन करने गई विपश्यना के लिए। फिर आके कम्युनिकेशन कोर्सेज किए, बहुत सारे लोगों को मेंटर किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेंटर किया, बहुत सारे रिप्यूटेड कोचेज ने मुझे ट्रेंड किया। और फिर उसके बाद मैंने अस का प्रोग्राम भी लिखा, विच वाज अ बिजनेस प्रोग्राम। ये जो मैं कुछ स्लाइड आपको दिखा रही हूँ, वंदना लूथरा, नीता अंबानी, एक्शन शूज, डालमिया, वे भी मेरे कस्टमर रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड इस जर्नी में मुझे मिले, बहुत सारी एप्रिसिएशन मिली, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले। आप सोचिए, आप पूछिए अपने आप से, क्या आपको फाइनेंशियली फ्री होना है जैसे मैं हुई? होना है क्या? पूछ रही हूँ मैं आपसे। आई नीड योर आंसर। डू यू वांट टू बिकम एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट? क्या आप अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाह रही हैं कि जो डिसीजन आप लेंगे वो आप लेंगे, और फिर ये पैसा आप ईज के साथ कमाएंगे, आराम के साथ कमाएंगे, कंफर्ट के साथ कमाएंगे, एंड देन will you it be a playful and fulfilling journey? कि मस्ती के साथ, स्ट्रेस के साथ नहीं। डू यू वांट टू डू दैट? डू यू वांट टू डू दैट? तो मैं आपके लिए ना एक छोटा सा प्रोग्राम लाई हूँ। क्यों लाई हूँ मैं आपको बताऊं। आप सबने अपने नंबर मुझे दिए कि आप मुझे प्रोग्राम के बारे में बताएं, बिजनेस के बारे में बताएं, ये बताएं, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई भी रिस्क ना लें। मैं ये चाहती हूँ कि आप बिल्कुल श्योर फुटेड होके चलें। मैं ये चाहती हूँ कि बिजनेस, आप में से ज्यादातर होम मेकर हैं, जो काम कर रहे हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, कि उनको ये पता लगे कि ग्रोथ कैसे होगी। होम मेकर्स को ये पता लगे कि क्या गिफ्ट पैकेजिंग मेरे लिए राइट है, मैं उसमें कैसे फिट हो रही हूँ। क्या मैप का कोर्स, जिसकी इंक्वायरी करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्या ये कोर्स मेरे लिए ठीक ठाक है? क्या शालिनी मैम तो बैठी है दिल्ली में, मैं बैठी हूँ कहीं और, तो क्या मैं ये ऑनलाइन अच्छे से सीख सकती हूँ? क्या ऐसा नहीं हो कि मेरा पैसा वेस्ट हो जाए? सो डू यू रियली वांट टू हैव आंसर टू ऑल दिस? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव an आंसर टू ऑल दिस? वेदर इज दिस प्रोफेशन गुड फॉर मी और नॉट? यस एंड नो लिखो कि मेरे लिए ये प्रोफेशन अच्छा है कि नहीं। किस किस को जानना है? किस किस को जानना है? या ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं? क्या हम सीख सकते हैं कि नहीं ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर? मुझे तो लगता है मेरे सामने टीचर हो तभी सीख सकता है, नहीं तो नहीं सीख सकता है। फिर क्या मैं बना सकती हूँ? मैंने कभी काम नहीं किया, क्या मैं क्रिएटिव हूँ? क्या मैं कर पाऊंगी? कुछ को लगता है मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, कुछ को लगता है मैं बिल्कुल क्रिएटिव नहीं। क्या मैं मार्केटिंग सीख पाऊंगी? विल आई बी एबल टू मार्केट माई सेल्फ? ये सारे प्रश्नों का उत्तर अगर मैं आपको दिलवा दूं तो कैसा रहेगा? और फिर आप आगे बढ़ें 3 दिन के अंदर 2-2 घंटे
हाउ विल दैट बी? छोटे से पैसों में. हाउ मेनी ऑफ यू will like to know that? How many of you will like to get that awareness? तभी बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताना है मेरे को. I don't want to tell. I want to tell only if you want to know, if you feel yourself fit into it. How many of you want to know? So many people are saying no. So I'm going to give you this detail of a wonderful workshop जिसको मैं ये बोलती हूँ, it's a map miniature program. 6 महीने का प्रोग्राम बिजनेस कोर्स का जिसके लिए आपने इंक्वायरी की है, ये इसका एक बहुत छोटा सा रूप है. इसमें आपको पता लगेगा हाउ विल दिस इंडस्ट्री वर्क फॉर यू. इसमें आपको ये पता लगेगा कि चीजें कैसे क्रिएट की जाती हैं. आप मेरे साथ काम करेंगी वीडियो पर, सच में चीजें बनाएंगी. सो देखते हैं इसमें 3 दिन हम क्या करेंगे. सो आप यहाँ पे पहले दिन हम काम करेंगे पॉजिटिव और रेजिलिएंट माइंडसेट पे, कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, ताकि अगर मन जीता जग जीता, किसने मानता है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? मन जीता जग जीता, कि अगर हमने अपने मन को अपने वश में कर लिया, अपने दिमाग को दृढ़ता से आगे ले गए, तो वी हैव वन एवरीथिंग. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? तो हम सबसे पहले सीखेंगे रेजिलिएंट माइंडसेट, फिर हम आएंगे क्रिएटिविटी पर. मटेरियल एक, रूप अनेक, यानी लिमिटलेस क्रिएटिविटी. जैसे मैंने आज आपको रिबन से दिखाई, बिल्कुल वैसे ही. और आप उस वीडियो को देख के बनाएंगे खुद. वाई वीडियो? बिकॉज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वीडियो लर्निंग आज के दिन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि आपको कहीं निकलने की जरूरत नहीं है. आप सारी एजुकेशन घर से पा सकते हैं. देन वी कम टू कि इंट्रोडक्शन टू द वर्सेटैलिटी ऑफ द मटेरियल इन गिफ्ट पैकेजिंग, कि हमारा गिफ्ट पैकेजिंग का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे हम किसी भी चीज से बहुत खूबसूरत चीजें बनाकर बेच सकते हैं. पहला दिन आपको मन से पक्का करेगा, आपको एंडलेस पॉसिबिलिटी दिखाएगा और आपको जुगाड़ बताएगा. सेकेंड डे हम ये सीखेंगे कि डिजाइनर और एक ऑर्डिनरी गिफ्ट पैकिंग डिजाइनर में क्या फर्क होता है, कलेक्शंस को कैसे क्रिएट किया जाता है. देन वी विल ऑल्सो लर्न कि लो कॉस्ट हाई मार्जिन प्रोडक्ट कैसे बनता है. आप में से कितने जने हैं जो थोड़ा पैसा खर्च करके ज्यादा पाना चाहते हो? जल्दी से बताओ. जिसको बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसे खर्चे कम करने हैं और ज्यादा पैसा लेना है. हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर दैट यू वांट टू डू दैट? राइट? सो टाइप इन, यूज योर चैट that I want to do that, right? And then we'll do creative ways to do repurposeful everyday object into gift packaging, कि हम हर रोज वाली चीजों को गिफ्ट पैकेजिंग में कैसे क्रिएट कर सकते हैं. कुछ इसके एग्जाम्पल आप मैप के इंस्टाग्राम पे देखिए. हमने जेवनाओ एक ब्रांड है जहां पे वो घरेलू चीजें रखते हैं, हमने उनके साथ कोलैबोरेट करके बहुत ही प्रीमियम हैम्पर्स को क्रिएट किया. सो हाउ कैन दैट बी डन? देन वी कम टू थर्ड डे. अब हमारा प्रोडक्ट बन गया, क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग हो गई. अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग पर, क्लाइंट की जर्नी को अंडरस्टैंड करके. शालिनी मैम मैंने इतना बूस्ट किया, शालिनी मैम मैंने व्हाट्सएप पे ये किया, शालिनी मैम मैंने ये किया, रिजल्ट नहीं आया. अरे भाई, क्लाइंट जर्नी नहीं पता आपको. क्लाइंट आपको कहाँ कहाँ टच कर रहा है, कहाँ कहाँ फील कर रहा है. आज आप मेरे पास आई हैं, सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे आई, आपने एक रील देखी, वहां पर आप लैंडिंग पेज पे गई, वहां से आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में आई, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको एक जूम लिंक मिला, आप अब यहाँ पर आई और यहाँ से आपकी आगे की जर्नी है. सारा कुछ मैप किया हुआ है. आपने किया है क्या? आपने अपने क्लाइंट की जर्नी को मैप किया? आई एम आस्किंग यू कि मेरे पास एक क्लाइंट आएगा कैसे भाई? रेफरल से आएगा तो आगे कैसे जाएगा, कैसे होगा? राइट? हाँ, you will face the problem, because you'll face the problem, you don't know what is the journey of your client. Then we move to AI, artificial intelligence. वहां से हम अपना मार्केटिंग प्लान बनाएंगे, अपने बिजनेस गोल बनाएंगे, अपने टारगेट ऑडियंस बनाएंगे. And then we will do how to communicate effectively, how to create value of your products, how to give proper service to your client. आप लोग मेरे साथ यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा से बैठे हो सारे जने? हाँ जी, आप लोग सब जने मेरे पास 1 घंटे से ज्यादा बैठे हो. क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? Why? Why are you sitting here? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए बताओ? I'm asking you, क्यों नहीं गए?
और भी कोई वैल्यू दे सकता था, पर नहीं गए ना आप। इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं वैल्यू क्रिएट कर रही हूँ अपने शब्दों के साथ। आप इंटरेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूं आपको उसमें आंसर मिल रहे हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? कि आपको उसमें आपकी प्रॉब्लम के आंसर मिल रहे हैं। सो गाइस, आपके पास बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते हो, आपको उसके बारे में आप समझा नहीं पाते हो। एम आई राइट? राइट। और जिस समय हम ये काम करेंगे, इसके साथ हम असाइनमेंट करेंगे, एफर्मेशंस करेंगे, और इन 3 दिन के बाद में 3 दिन लाइव में वीडियो में जाएंगे, देन आई विल डू लाइव विथ यू। मैं आपका काम देखूंगी, क्योंकि आप काम करेंगी साथ में, वीडियो देख के आप काम करेंगे, आप हैरान रह जाओगे, आप इतना खूबसूरत काम कर सकती हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप काम करने के बाद में 4th डे हम एक लाइव में आपसे मिलेंगे। उस लाइव के अंदर हम आपके काम की चर्चा करेंगे, आपकी जिंदगी की चर्चा करेंगे, और ये देखेंगे कि कौन कौन आगे जा सकता है, किस किस के लिए ये ठीक है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ सेलिंग द कोर्स, इट इज अ मैटर ऑफ क्रिएटिंग अ सक्सेस इन योर लाइफ। मेरी सफलता इसमें नहीं है कि मैंने कोर्स बेचा, मेरी सफलता इसमें है कि आपने कितने पैसे कमाए, आप कितनी सफल हुई। डू यू अग्री विद मी? एक कोर्स का, एक टीचर की सफलता किसमें है कि उसका स्टूडेंट कितनी आगे जा रहा है, उसका स्टूडेंट कितनी आगे जा रहा है। अब ये मुझे बताओ, एक कप कॉफी कितने की आती है स्टारबक्स में या कॉफी कैफे में? जल्दी से बताओ। 1 कप कॉफी हाउ मच डज इट कॉस्ट? जल्दी से बताओ। 250, 500 कोई बोल रहा है, तो विद टैक्स इट इज समथिंग अराउंड 400, 390, 400, यस 350 शी सेइंग, अबाउट 400। तो आप ये समझ लो, ये सारा सीखने के लिए कि मैं मार्केटिंग कैसे करूं, यूट्यूब पे ये वीडियो में कैसे होएगा, मैं खुद बनाऊंगी कैसे, मेरे लिए ये फिट है कि नहीं है, लो कॉस्ट हाई मार्जिन कैसे होता है, माइंड को रेजिलिएंट कैसे करना है, आपने हर रोज 1 कप कॉफी का पैसा खर्चा करना है। सो फॉर 3 days कोर्स, हाउ मच आई एम गोइंग टू चार्ज यू? कितना हुआ? 360 के हिसाब से इंक्लूसिव ऑफ टैक्सिंग, दिस इज 999। Isn't it steal? Isn't it steal? कि आपके सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, 3 वीडियो सेशंस और 1 लाइव सेशन आपको मिले पर्सनली मेरे साथ में, सिर्फ उन लोगों के साथ जो उसको कर रहे हैं। वोंट दैट बी फैंटास्टिक? गेटिंग ऑल। और फिर वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी भी, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनकी भी। वहां से उनकी जर्नी शुरू होती है कि मैं अब आगे कैसे चलूं। मैंने अगर प्रोग्राम करना है, मैंने सीखना है, तो क्या मैप का प्रोग्राम मेरे लिए फिट है? क्योंकि आप उस प्रोग्राम को इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। क्या ये टीचर मेरे लिए फिट है? क्योंकि आप उसके अंदर उसको एक्सपीरियंस करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दिस प्रोग्राम? हाउ मेनी? ये सिर्फ 2 घंटे के लिए अपॉर्चुनिटी है 999 की, अदरवाइज दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट फॉर इट। वीडियो कोर्स है, कंफर्ट से करो, एनी टाइम यू कैन डू, बिकॉज आपको सुबह वीडियो मिलेगा, पूरा दिन है, और वीडियो 1 हफ्ते रहेगा आपके पास में, तो आपके पास टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, एंड यू नीड टू वर्क विद टुडे। तो 2 घंटे के लिए ये डिस्काउंटेड अपॉर्चुनिटी 2 घंटे के लिए। बाद में जो है, अगर आप बाद में बुक करेंगे तो दिस इज 5 days program is for 5,000 rupees inclusive of taxes, बट अगर आप इस 2 घंटे में लेती हैं तो इट्स फॉर 999। वो भी इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। आई विल रिक्वेस्ट मानसी टू पोस्ट द पेमेंट लिंक हियर। आपको मैं लिंक दे रही हूँ रेजर पे का, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन इट गोज। मैंने फ्रीज कर दिया चैट, आई हैव फ्रोजन द चैट। तो अभी बजा है 4, आप 4 से 6 के बीच में पेमेंट कर सकती हैं, और ये लिमिटेड लोगों के लिए हम करते हैं, बड़ा ग्रुप नहीं बहुत बनाते हैं इसके अंदर, थोड़े लोगों के अंदर हम इस प्रोग्राम को करते हैं, सो दैट यू कैन रियली टेक फुल बेनिफिट ऑफ इट। 3 वीडियोस एंड 1 लाइव, इट्स अ स्टील। जब मैं कानपुर से निकली तो खोने को क्या था? मान सम्मान इज्जत सब कुछ था कि नहीं था ना? घर छोड़ के आ रही थी, पर पाने को क्या था? पूरी जिंदगी। आज अगर मैं आपके सामने बैठी हूं तो तब बैठी हूं क्योंकि उस दिन वो कदम लिया था। सो आज आपके पास खोने को क्या है? 1000 रुपीज, 999, नॉट इवन 1000। और पाने को क्या है?
वो फ्यूचर जिसका हम सपना देखते हैं, वो फ्यूचर जो हम बिजनेस को करना चाहते हैं, यार एक्सपीरियंस करके श्योर शॉट होके चलते हैं। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी इट्स अ गुड प्रोग्राम टू डू, राइट? सो आई हैव अनम्यूटेड यू। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, वैसे तो होने ही नहीं चाहिए, यू शुड जस्ट पे एंड गेट ऑन टू इट। क्योंकि अगर कोई बनने वाला प्रोफेशनल अपने भविष्य के लिए इतना भी रिस्क टेकिंग नहीं कर सकता है तो बिजनेस नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डू बिजनेस, दैट्स फॉर श्योर। यस सुषमा, यू वांट टू आस्क समथिंग, बताइए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Anybody wants to ask anything, otherwise you can start paying. हाँ जी सुमन, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैम ये 3 days में हमें जो बनाना है उसके लिए रॉ मटेरियल्स कुछ चाहिएगा? आप सब घर से निकाल लेंगी, देख लीजिएगा, आप सब बना लेंगी। प्रोग्राम डिजाइन इसी ढंग से किया गया है कि आप बिल्कुल मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। ओके मैम, हाँ जी मैं जयवीर, पेमेंट आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? Otherwise, you already have a payment link and you can just pay. हाँ जी हीरा, अनम्यूट करिए अपने आप को।